नमस्कार। परमहंस योगानंद जी द्वारा 1917 में स्थापित संस्था योगदा सत्संग सोसाइटी की ओर से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री जी, हम सब की ओर से आपको नमस्कार। माननीय महोदय, आपका हमारे बीच होना हमारे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है। मैं आपसे अब निवेदन करता हूं कि दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें और मैं स्वामी विश्वानंद जी तथा स्वामी स्मरणानंद जी से भी निवेदन करता हूं कि वे प्रधानमंत्री की सहायता करें। अब मैं स्वामी विश्वानंद जी से निवेदन करता हूं कि वे प्रधानमंत्री जी को हम सब की ओर से पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। अब मैं योगदा सत्संग सोसाइटी के महासचिव स्वामी स्मरणानंद जी से निवेदन करूंगा कि वे प्रधानमंत्री जी को शॉल भेंट कर उनका विधिवत स्वागत करें। अब मैं महासचिव स्वामी स्मरणानंद जी से अनुरोध करूंगा कि वे आकर योगदा सत्संग सोसाइटी का परिचय दें और इस ऐतिहासिक दिन के महत्व पर प्रकाश डालें। स्वामी स्मरणानंद जी IIT खड़गपुर से डॉक्टरी की उपाधि प्राप्त करने के पश्चात मॉन्ट्रियल कनाडा गए और वहां पर उन्होंने पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च किया। तदुपरांत वे भारत आए और 1985 में उनके सामने यह विकल्प था कि या तो वे भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के मिसाइल टीम में एक साइंटिस्ट के रूप में कार्य करें या योगदा सत्संग सोसाइटी के एक सन्यासी बने। हम सब जानते हैं कि उन्होंने क्या चुना। अब मैं स्वामी स्मरणानंद जी से अनुरोध करूंगा कि वे यहां पर आएं। स्वामी जी। माननीय प्रधानमंत्री जी और अन्य प्रिय आत्मा, most of you would be familiar with the Bhagavad Gita sloka, Paritranaya sadhunam vinasaya cha dushkritam dharma samsthapanardhaya sambhavami yuge yuge. As you know, the literal meaning of the sloka is, in a visible form, I appear from age to age to protect the virtuous and to destroy evil doing in order to re-establish
righteousness. This sloka is often understood to emphasize the destruction of evildoers by avatars. And we have examples like Narasimha Avatar and Bhagavan Sri Ram, who eliminated wicked people. However, an avatar doesn't necessarily come onto earth to annihilate evildoers. He could also come to help devotees to annihilate the demons of Maya within. For example, Adi Shankaracharya, Gautam Buddha, Ramakrishna Paramahamsa, Paramahamsa Yogananda ji, they are avatars who are here to help you and me to conquer that delusion within and find salvation, mukti. Paramahamsa Yogananda ji, he incarnated on earth to teach mankind Kriya Yoga to conquer that Maya that is overpowering us. Yogananda ji said, when I am no longer in the body, this organization will be my body. By this organization, he meant Yogoda Satsanga Society of India, which he established in 1917, whose centenary we are now celebrating in this year. Eminent American poet Ralph Emerson said, "Every great institution is the lengthened shadow of a single man. His character determines the character of the organization." Yogoda Satsanga Society reflects the character of Paramahamsa Yogananda ji. Regarding the character and stature of Paramahamsa Yogananda ji, it is an open book for everyone to see and appreciate. As an author, as an organizer, as a poet, as a musician, as a yoga teacher, he was a towering figure of the 20th century. An immortal spiritual son of Mother India, a saint of the East and the West, he is regarded as the father of yoga in the West. He taught Kriya Yoga, the highest and time-tested scientific meditation technique, to still the body and mind and to attain deeper levels of pratyahara, interiorization, in order to experience the divinity within. Paramahamsa ji's book, Autobiography of Yogi, it has been a spiritual classic, a perennial bestseller for the last 7 decades since its publication in 1946. This has been translated into this book is now available in 46 world languages. As a result, 95% of world population can read this book in their own language. His organization, Yogoda Satsanga Society, being his lengthened shadow, continues to spread his message of love, joy, wisdom, and service. Dissemination of scientific meditation techniques for attaining direct personal experience of God within and serving the mankind as one's largest self, and to promote cultural and spiritual understanding between East and West are among the foremost aims of this organization. As a result, the contributions of the society, Yogoda Satsanga Society, over the last century are numerous.
and the impact is enormous. Through the Yoga Satsanga teachings, millions have understood the real meaning of religion, and more importantly, the most effective practice of religion. Devotees are convinced that the divinity can be experienced within. God is no more an abstract mental concept. Yoga meditation is no more a monopoly of Himalayan yogis and ashramites. Yoga meditation is available to all truth seekers at their doorstep. Yoga Satsanga Society is trying towards this goal. The purpose of life has become clear through the teachings of Yogada. Why to seek God and how to seek God as love, joy is becoming clear. The teachings teach us how to live and how to live. Yes, how to live in this world purposefully and how to leave this world gracefully when time comes. Exactly 40 years ago, on this day, March 7, 1977, the government of India had issued a commemorative stamp in honor of Paramahansa Yoganandaji and stated, the ideal of love for God and service to humanity found full expression in the life of Paramahansa Yogananda. His work continues to grow and shine ever more brightly, drawing people everywhere on the path of pilgrimage of the Spirit. In faithfully safeguarding and carrying forward the 100-year-old legacy of Paramahansa Yoganandaji, Yoga Satsanga Society is dedicated to continue bringing peace and light into the lives of millions struggling with the challenges of the modern world and thus serving mankind as larger self. Just to close, this book, when it was published in 1946, the world media hailed it as inspired with the power to bring about a spiritual revolution. We pray and hope that this centenary of this organization will inspire many towards seeking the divinity within, thereby attaining a life free from fear and anxiety in centuries to come. Om Shanti, Shanti, Shanti. अब मैं स्वामी विश्वानंद जी से अनुरोध करूंगा कि वे योगदा सत्संग सोसाइटी की परम पूज्य संघ माता मृणालिनी माता जी का इस ऐतिहासिक अवसर के लिए भेजे गए आशीर्वाद और विशेष संदेश को पढ़कर सुनाएं। स्वामी विश्वानंद जी 1970 के दशक की शुरुआत में एक आध्यात्मिक पिपासु के रूप में भारत आए और 1973 में उन्होंने योगदा सत्संग सोसाइटी रांची में एक सन्यासी के रूप में आश्रम ज्वाइन किया और 18 साल तक उन्होंने भारत में अपनी सेवाएं दी। तदुपरांत उन्हें संस्था के अंतर्राष्ट्रीय
Although much of his time was spent in America, spreading India's universal spirituality and ancient science of yoga meditation, Paramahansa Yoganandaji's love and concern for his motherland never diminished. His very last words before departing this world on this very day, March 7th, 1952, were a heartfelt tribute to his beloved India. India's greatest wealth and strength today, as throughout her long history, lies in her cherishing and actively expressing the eternal spiritual truths that her seers have perceived and bequeathed to humanity. Down the ages, great souls, Mahatmas, saints, and sages of highest divine realization have been motivated by their great love of Mother India to serve that loftiest and most noble cause. That the government of India has chosen today to honor the life work of one such exemplary divine personage is a profound source of hope and inspiration, not only for India, but for the millions worldwide who look to her for spiritual light in these troubled times. Sri Sri Paramahansa Yogananda often said, "Reform yourself, and you will reform thousands." India's divine and universal science of yoga and meditation embodies the most effective methods of bringing about lasting positive transformations, behavioral and thought patterns. One of the main aims and ideals of Paramahansa Yoganandaji Society is to disseminate among the nations the knowledge of scientific techniques of meditation, taught for millennia by India's great rishis, by which each human being, regardless of nationality, caste, or creed, can realize his or her own divinity and experience inner peace, love, and joy. When each individual has peace within, world peace will naturally flow. In deep appreciation, Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi's kindness in taking time out from his busy schedule to be personally present on this day. How fitting it is that this commemorative stamp for the YSS centenary is being released by Shri Modi, himself an ardent practitioner of yoga. The International Day of Yoga, proposed by him and subsequently adopted as a United Nations resolution within a very short time and by a record number of nations, is playing an important role in spreading the universal message of the yoga science around the world. We are grateful to Shri Modi for this landmark initiative. Paramahansa Yoganandaji predicted that an ideal world civilization will emerge by combining the spirituality of India with the material efficiency of Western nations. India, therefore, has an important and necessary role to play in helping to elevate human consciousness in its upward evolutionary cycle. It is my ardent prayer that through the practice of the unity-bestowing spiritual teachings exemplified by Sri Sri Paramahansa Yogananda and other great masters of India, we may move forward into an era of global peace,
divine harmony, and prosperity for every member of our human family. May the light and love of God and the great ones bless and uplift you all. Shri Shri Mrinalini Mata. अब हम आज के मुख्य कार्यक्रम पर आते हैं। मैं इस संस्था की ओर से यह घोषणा करते हुए अत्यंत आनंद अनुभव कर रहा हूं कि परमहंस योगानंद जी द्वारा स्थापित योगदास सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया के 100वें स्थापना दिवस के अवसर पर भारत सरकार द्वारा एक विशेष डाक टिकट जारी किया जा रहा है। अब मैं दिल्ली के पोस्ट मास्टर जनरल श्री सुजीत कुमार चौधरी के द्वारा स्टैम्प एल्बम प्रस्तुत करने का अनुरोध करता हूं। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे अपने बहुमूल्य वचनों से हमें अनुग्रहित करें। स्वामी श्री विश्वानंद गिरी जी, स्वामी श्री स्मरानंद गिरी जी, स्वामी श्री नित्यानंद गिरी जी, स्वामी श्री सुखानंदा गिरी जी, श्री के.एन. बख्शी जी, स्वामी सदानंदा गिरी जी, स्वामी ईश्वरानंद गिरी जी और योगी परिवार के सभी महानुभाव, आज 7 मार्च है। ठीक 65 साल पहले एक शरीर हमारे पास रह गया और एक सीमित दायरे में बंधा हुआ आत्मा युगों की आस्था बनकर के फैल गया। आज हम 7 मार्च को एक विशिष्ट अवसर पर एकत्र आए हैं। मैं श्री माता जी को भी प्रणाम करता हूं कि मुझे बताया गया कि वहां लॉस एंजलिस में वो भी
इस कार्यक्रम में शरीक हैं। जैसा अभी स्वामी जी बता रहे थे कि दुनिया के 95% लोग अपनी मातृभाषा में योगी जी की आत्मकथा को पढ़ सकते हैं। लेकिन उससे ज्यादा मुझे इस बात पर मेरा ध्यान जाता है, क्या कारण होगा कि दुनिया में कोई इंसान जो न इस देश को जानता है, न यहाँ की भाषा को जानता है, न इस पहनाव का क्या अर्थ होता है ये भी जिसको पता नहीं, उसको तो एक कॉस्ट्यूम लगता है, क्या कारण होगा कि वो उसको पढ़ने के लिए आकर्षित होता होगा? क्या कारण होगा कि उसे अपनी मातृभाषा में तैयार करके औरों तक पहुंचाने का मन करता होगा? इस आध्यात्मिक चेतना की अनुभूति का ये परिणाम है कि हर कोई सोचता है कि मैं भी कुछ प्रसाद बांटूं। हम मंदिर में जाते हैं, थोड़ा सा भी प्रसाद मिल जाता है तो घर जाकर के थोड़ा थोड़ा भी जितने लोगों को बांट सके बांटते हैं। वो प्रसाद मेरी मालिकी नहीं है, न ही मैंने उसको बनाया है, लेकिन ये कुछ पवित्र है, मैं बांटता हूं तो मुझे एक संतोष मिलता है। योगी जी ने जो किया है, हम उसे प्रसाद रूप लेकर के बांटते चले जा रहे हैं और एक भीतर के आध्यात्मिक सुख की अनुभूति कर रहे हैं। और वही मुक्ति के मार्ग वगैरह की चर्चा तो हमारे यहां बहुत होती है। एक ऐसा भी वर्ग है कि जिसकी सोच है कि इस जीवन में जो है सो है, कल किसने देखा है। कुछ लोग हैं जो मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त करने का प्रयास करते हैं, लेकिन योगी जी की पूरी यात्रा को देखें तो वहां मुक्ति के मार्ग की नहीं, अंतर यात्रा की चर्चा है। आप भीतर कितने जा सकते हो, अपने आप में समाहित कैसे हो सकते हो। प्रकृतिगत विस्तार स्वभाव है, अध्यात्म भीतर जाने की एक अविरत अनंत मंगल यात्रा है। और इस यात्रा को सही मार्ग पर, सही गति से, उचित गंतव्य पर पहुंचाने में हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, आचार्यों ने, भगवंतियों ने, तपस्वियों ने एक बहुत बड़ा योगदान किया है। और समय समय पर किसी न किसी रूप में ये परंपरा आगे बढ़ती चली जा रही है। योगी जी की जीवन की विशेषता, जीवन तो बहुत अल्पकाल का रहा, शायद वो भी कोई आध्यात्मिक संकेत होगा। कभी कभी हठ योग को बुरा माना जाता है, लेकिन वे प्रखर रूप से हठ योग के सकारात्मक पहलुओं की तर्कबद्ध तरीके से व्याख्या करते थे, लेकिन हर एक को क्रिया योग की तरफ वो प्रेरित करते थे। और मैं मानता हूं कि योग के जितने भी प्रकार है उसमें क्रिया योग ने अपना एक स्थान निश्चिंत किया हुआ है।
जो हमें हमारे अंतर की ओर ले जाने के लिए जिस आत्मबल की आवश्यकता होती है, कुछ योग ऐसे होते हैं जिसमें शरीर बल की जरूरत होती है, क्रिया योग ऐसा है जिसमें आत्मबल की जरूरत होती है, जो आत्मबल की यात्रा से ले जाता है। और इसलिए और जीवन का मकसद कैसा? बहुत कम लोगों के ऐसे मकसद होते हैं। योगी जी कहते थे, भाई मैं अस्पताल में बिस्तर पे मरना नहीं चाहता हूं, मैं तो जूते पहन करके कभी मां भारती का स्मरण करते हुए आखिरी विदाई लूं, वो रूप चाहता हूं। यानी वे भारत को विदाई नमस्ते करके चल दिए, पश्चिम की दुनिया को संदेश देने का सपना लेकर के निकल पड़े। लेकिन शायद फ्रिक्शन ऑफ सेकंड भी ऐसे कोई अवस्था नहीं होगी कि जब वो इस भारत माता से अलग हुए हो। मैं कल काशी में था, बनारस से ही मैं आज रात को आया, और योगी जी के आत्मकथा में बनारस में उनका लड़कपन की बातें बड़ी भरपूर मात्रा में है। शरीर तो गोरखपुर में जन्म लिया, लेकिन बचपन बनारस में बीता, और वो मां गंगा और वहां की सारी परंपराएं, उस आध्यात्मिक शहर की उनके मन पर जो असर थी, जिसने उनके लड़कपन को एक प्रकार से सजाया संवारा, गंगा की पवित्र धारा की तरह उसको बहाया, और वो आज भी हम सबके भीतर बह रहा है। जब योगी जी ने अपना शरीर छोड़ा, उस दिन भी वो कर्मरत थे, अपने कर्तव्य पथ पर थे। अमेरिका में जो भारत के राजदूत थे, उनके सम्मान समारोह चल रहा था, और भारत के राजदूत के सम्मान समारोह में वो व्याख्यान दे रहे थे। और उसी समय, शायद कपड़े बदलने में देर लगती है, उतनी भी देर नहीं लगी, ऐसे ही चल दिए, और जाते जाते उनके जो आखिरी शब्द थे, मैं समझता हूं कि देशभक्ति क्या होती है, मानवता क्या होती है, अध्यात्म की यात्रा जीवन को कहां ले जाती है, उस शब्दों में बड़ा अद्भुत रूप से आखिरी शब्द है योगी जी के। और उसी समारोह में, और वो भी एक राजदूत के, यानी सरकारी कार्यक्रम था, और उस कार्यक्रम में भी योगी जी कह रहे हैं, जहां गंगा, जंगल, हिमालय, गुफाएं और मनुष्य ईश्वर के स्वप्न देखते हैं, यानी देखिए क्या विस्तार है। गुफा भी ईश्वर का सपना देखता है, जंगल भी ईश्वर का सपना देखता है, गंगा भी ईश्वर का सपना देखता है, सिर्फ इंसान नहीं। मैं धन्य हूं कि मेरे शरीर ने उस मातृभूमि को स्पर्श किया। जिस शरीर में वो विराजमान थे, उस शरीर के द्वारा निकले हुए आखिरी शब्द थे। फिर वो आत्मा अपना विचरण करके चली गई, जो हम लोगों में विस्तृत हो चुकी है। मैं समझता हूं कि एकात्म भाव, आदि शंकर ने अद्वैत के सिद्धांत की चर्चा की है। जहां द्वैत नहीं है,
वही अद्वैत है। जहां मैं नहीं, मैं और तू नहीं, वही अद्वैत है। जो मैं हूं और वो ईश्वर है वो नहीं मानता, वो मानता है कि ईश्वर मेरे में है, मैं ईश्वर में हूं, वो अद्वैत है। और योगी जी ने भी अपने एक कविता में बहुत बढ़िया ढंग से इस बात को, वैसे मैं इसको उसमें लिखा तो नहीं गया है, लेकिन मैं जब उसका इंटरप्रिटेशन करता था, जब भी पढ़ता था, तो मैं इसको अद्वैत के सिद्धांत के साथ बड़ा निकट पाता था। और उसमें योगी जी कहते हैं, ब्रह्म मुझ में समा गया, मैं ब्रह्म में समा गया। अब ये अपने आप में अद्वैत का सिद्धांत का एक सरल रूप है। ब्रह्म मुझ में समा गया, मैं ब्रह्म में समा गया, ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञेय सबके सब एक हो गए। जैसे हम कहते हैं ना, कर्ता और कर्म एक हो जाए तब सिद्धि सहज हो जाती है। कर्ता को क्रिया नहीं करनी पड़ती और कर्म कर्ता का इंतजार नहीं करता है। कर्ता और कर्म एक रूप हो जाते हैं, तब सिद्धि की अनोखी अवस्था हो जाती है। उसी प्रकार से योगी जी आगे कहते हैं, शांत अखंड रोमांच सदा, शांत अखंड रोमांच सदा, शांत अखंड रोमांच सदा के लिए जीती जागती नित्य नूतन शांति, नित्य नवीन शांति। यानी कल की शांति आज शायद काम ना आए, आज मुझे नित्य नूतन नवीन शांति चाहिए। और इसलिए यहां स्वामी जी ने आखिर में अपने शब्द कहे, ओम शांति शांति। ये कोई प्रोटोकॉल नहीं है, एक बहुत तपस्या के बाद की हुई आत्मा की परिणति का एक मुकाम है। तभी तो ओम शांति 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 की बात आती है। समस्त आशा और कल्पनाओं से परे, समस्त आशाओं और कल्पनाओं से परे आनंद देने वाला समाधि का परमानंद, ये अवस्था का वर्णन उनकी एक समाधि कविता में योगी जी ने बड़े बखूबी ढंग से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। और मैं समझता हूं कि इतनी सरलता से जीवन को ढाल देना, और पूरे योगी जी के जीवन को देखें, हम हवा के बिना रह नहीं सकते हैं। हवा हर पल होती है, पर कभी हमें हाथ इधर ले जाना है तो हवा कहती नहीं कि रुक जाओ, मुझे जरा हटने दो। हाथ यहां फैला है तो कहती नहीं कि रुक जाओ, मुझे यहां फैले दो। योगी जी ने अपना स्थान उसी रूप में हमारे आसपास समाहित कर दिया कि हमें एहसास होता रहे, लेकिन रुकावट कहीं नहीं आती है। सोचते हैं ठीक है, आज ये नहीं कर पाता है, कल कर लेगा। ये प्रतीक्षा, ये धैर्य बहुत कम व्यवस्थाओं और परंपराओं में देखने को मिलता है। योगी जी ने व्यवस्थाओं का इतना लचीलापन दिया, और आज शताब्दी हो गई, खुद तो इस संस्था को जन्म देकर के चले गए, लेकिन ये एक आंदोलन बन गया। आध्यात्मिक चेतना की निरंतर
अवस्था बन गया और अब तक शायद चौथी पीढ़ी आज इसमें सक्रिय होगी। इसके पहले 3-4 पीढ़ियां चली गई होगी, लेकिन न डाइल्यूजन आया न डाइवर्जन आया। अगर संस्थागत मोह होता, अगर व्यवस्था केंद्रीय प्रक्रिया होती, तो व्यक्ति के विचार, प्रभाव, समय, इसका उस पर प्रभाव होता। लेकिन जो आंदोलन कालातीत होता है, काल के बंधनों बंधा नहीं होता है, अलग अलग पीढ़ियां आती हैं, तो भी व्यवस्थाओं को न कभी टकराव आता है न दुराव आता है। वो हल्के फुल्के ढंग से अपने पवित्र कार्य को करते रहते हैं। योगी जी का एक बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है कि एक ऐसी व्यवस्था देकर के गए जिस व्यवस्था में बंधन नहीं है, तो भी जैसे परिवार का कोई संविधान नहीं है लेकिन परिवार चलता है। योगी जी ने भी उसकी ऐसी व्यवस्था रची कि जिसमें सहज रूप से प्रक्रियाएं चल रही है। उनके बाहर जाने के बाद भी वो चलती रही और आज उनके आत्मिक आनंद को पाते पाते हम लोग भी इसको चला रहे हैं। मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा योगदान है। दुनिया आज अर्थ जीवन से प्रभावित है, टेक्नोलॉजी से प्रभावित है, और इसलिए दुनिया में जिसका जो ज्ञान होता है उसी तराजू से वो विश्व को तोलता भी है। मेरी समझ के हिसाब से मैं आपका अनुमान लगाता हूं, अगर मेरी समझ कुछ और होगी तो मैं आपका अनुमान अलग लगाऊंगा। तो ये सोचने वाले की क्षमता, स्वभाव और उस परिवेश का परिणाम होता है। उसके कारण विश्व की दृष्टि से भारत की तुलना होती होगी तो जनसंख्या के संबंध में होती होगी, जीडीपी के संदर्भ में होती होगी, रोजगार बेरोजगार के संदर्भ में होती होगी, क्योंकि विश्व के वो ही तराजू है। लेकिन दुनिया ने जिस तराजू को कभी जाना नहीं, पहचाना नहीं, भारत की पहचान का एक और मानदंड है, एक तराजू है, और वही भारत की ताकत है। वो है भारत का अध्यात्म। देश का दुर्भाग्य है कि कुछ लोग अध्यात्म को भी रिलीजन मानते हैं। ये और दुर्भाग्य है। धर्म, रिलीजन, संप्रदाय, ये और अध्यात्म बहुत अलग है। और हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी बार बार कहते थे कि भारत का आध्यात्मिकरण यही उसका सामर्थ्य है, और ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहनी चाहिए। इस आध्यात्म को वैश्विक फलक पर पहुंचाने का प्रयास हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने किया है। योग एक सरल एंट्री पॉइंट है मेरे हिसाब से। दुनिया के लोगों को आप आत्मवत् सर्वभूतेषु समझाने जाओगे तो कहां मेल बैठेगा। एक तरफ जहां ईट, ड्रिंक एंड बी मैरी की चर्चा होती है, वहां तेन तख्ते न भूंजी था मैं कहूंगा तो कहां गले उतरेगा। लेकिन अगर मैं ये कहूंगा भाई तुम नाक पकड़ के ऐसे बैठो, थोड़ा आराम मिल जाएगा, तो वो उसको लगता है चलो शुरू कर देते हैं। तो योग जो है वो हमारी आध्यात्मिक यात्रा का एंट्रेंस पॉइंट है। कोई इसे अंतिम न मान ले। लेकिन दुर्भाग्य से धन बल की अपनी एक ताकत होती है, धनवृत्ति भी रहती है, और उसके कारण उसका भी कॉमर्शलाइजेशन हो रहा है।
इतने डॉलर में इतनी समाधि होगी ये भी और कुछ लोगों ने योग को ही अंतिम मान लिया है। योग अंतिम नहीं है, उस अंतिम की ओर जाने के मार्ग का पहला प्रवेश द्वार है। और कहीं पहाड़ पर हमारी गाड़ी चढ़ानी हो तो बहुत धक्के लगाते हैं, गाड़ी बंद हो जाती है, लेकिन एक बार चालू हो जाए तो फिर गति पकड़ लेती है। योग का एक ऐसा एंट्रेंस पॉइंट है कि एक बार पहली बार उसको पकड़ लिया, निकल गए, फिर तो वो चलाता रहता है, फिर ज्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ती है, वो प्रक्रिया ही आपको ले जाती है जो क्रिया योग होता है। हमारे देश में फिर काशी की याद आना बड़ा स्वाभाविक है मुझे। संत कबीरदास, कैसे हमारे संतों ने हर चीज को कितनी सरलता से प्रस्तुत किया है। संत कबीरदास ने एक बड़ी मजेदार बात कही है और मैं समझता हूं वो योगी जी को पूरी तरह लागू होती है। उन्होंने कहा है, अवधूता युगन युगन हम योगी, आवई ना जाए मिटई ना कभू, सबद अनाहत भोगी। सबद अनाहत भोगी। कबीरदास कहते हैं योगी तो युगों युगों तक रहता है, न आता है न जाता है, न ही मिटता है। मैं समझता हूं आज जब हम योगी जी के उस आत्मिक स्वरूप के साथ एक सहयात्रा की अनुभूति करते हैं, तब संत कबीरदास की ये बात उतनी ही सटीक है कि योगी जाते नहीं है, योगी आते नहीं हैं, वो तो हमारे बीच ही होते हैं। उसी योगी को कृपा करते हैं, उनको नमन करते हुए आपके बीच इस पवित्र वातावरण में कुछ पल बिताने का मुझे सौभाग्य मिला। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं फिर एक बार योगी जी की इस महान परंपरा को प्रणाम करते हुए, सब संतों को प्रणाम करते हुए और इस आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाने में प्रयास करने वाले हर नागरिक के प्रति आदर भाव व्यक्त करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके इस प्रेरणादायक संबोधन के लिए हमारे हृदयपूर्ण आभार स्वीकार करें। आपके अनमोल वचन और आज का दिन हमारी स्मृतियों में तथा योगदास सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया के इतिहास में सदा अमिट रहेंगे।
महोदय, इस अवसर पर हम आपको एक विशेष मेमेंटो, एक स्मृति चिन्ह भेंट करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी, हमें यह जानकारी बिल्कुल भी नहीं थी कि आप गुरुदेव के अंतिम वचनों पर इतने विस्तार से बोलेंगे। लेकिन ईश्वर और परमहंस योगानंद जी इसे जानते थे। इसीलिए हमें यह प्रेरणा मिली कि आज के विशेष अवसर पर आपको स्मृति चिन्ह देने जा रहे थे, उन पर वे ही अविस्मरणीय अंतिम शब्दों का हिंदी रूपांतरण को अंकित करें। और ये पवित्र शब्द हैं, जय हो हे जननी, धर्मों, कमल, प्राकृतिक सौंदर्य और साधु संतों की जननी। खुले हैं विशाल द्वार तेरे युग युगों से, ईश्वर के सच्चे पुत्रों का स्वागत करने। जहां गंगा, वन, हिमालय की कंदराएं और जनमानस रहे मग्न ईश चिंतन में अनन्य, कर स्पर्श उस माटी को तन से, हुआ मैं परम धन्य। माननीय प्रधानमंत्री जी, अपने अति व्यस्त दिनचर्या से समय निकालकर योगदास सत्संग सोसाइटी के इस ऐतिहासिक अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में आकर आपने इस संस्था का सम्मान बढ़ाया। इसके लिए मैं योगदास सत्संग सोसाइटी के निदेशक मंडल की ओर से यहाँ इस हॉल में तथा हॉल नंबर 5 और 6 में बैठे अनेक योगदा भक्तों की ओर से तथा संपूर्ण भारत में और विदेशों में इस कार्यक्रम के लाइव टेलीकास्ट को देख रहे लाखों योगदा भक्तों की ओर से आपका हृदयपूर्वक धन्यवाद करता हूं। और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप इसी तरह भारत माता की सेवा करते रहें और इस देश को एक उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर करते रहें। मैं संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री माननीय मनोज सिन्हा जी को भी इस संस्था की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं, जिनके निरंतर सहयोग के कारण ही यह कार्यक्रम संभव हो सका। मैं पोस्ट मास्टर जनरल श्री सुजीत कुमार चौधरी तथा उनके विभाग के सभी अफसरों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इस सुंदर डाक टिकट को जारी किया है। यहां आए सभी अतिथियों और भक्तों को तथा सभी वॉलंटियर्स को भी मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपको पुनः हम सब की ओर से हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करते हुए इस कार्यक्रम को समाप्त करने की अनुमति चाहता हूं। धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। शती के अवसर पर आयोजित इस विशेष कार्यक्रम के समापन के साथ विदा लेते हैं। नमस्कार।